सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 14। सो अभी तक हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग द डायनेमिक्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन। सो अब से हम लोग नेक्स्ट दो तीन लेक्चर हम लोग डेडिकेट करेंगे टू स्टडी द डायनेमिक्स इन सर्कुलर मोशंस। ठीक है। सो अभी तक लेटली हम लोग फ्रिक्शन देख रहे थे। फ्रिक्शन में हम लोगों ने कनेक्टेड बॉडीज देखा, स्टैटिक फ्रिक्शन देखा। वी हैव स्टडीड द पेक्यूलियर नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हाउ इट चेंजेस इटसेल्फ एज पर द कंटेक्स्ट, एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है। सो हम लोगों ने इन डेप्थ देख लिया अभी तक फ्रिक्शन, और वी हैव कवर्ड अप ऑल द टॉपिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉज। सो अब हम वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन सर्कुलर पाथ्स। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो आज का हमारा लेक्चर है, उसका स्कोप है वी आर गोइंग टू स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखेंगे एंड व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, what are the different parameters are there in dynamics of circular motion। फिर हम देखेंगे एक centripetal force, what is the centripetal force we are going to see, then we are going to apply the Newton's laws in the circular motion। ठीक है। हम लोगों ने circular motion already we have seen the kinematics में जब हम पढ़ रहे थे, we have seen the kinematics of circular motion, but we have not studied the cause of those centripetal acceleration, and that is what we call the normal acceleration or centripetal acceleration हमने देखा था towards the radial in the radial direction। So we have not studied the cause, so now today we are going to study the cause of that centripetal acceleration, which is nothing but centripetal force। ठीक है। So that is what we are going to study today। Okay, so let's begin। dynamics of circular motion। so dynamics of circular motion में जाने से पहले we'll see the concept of circular force। ठीक है। so हमने देखा था कि अगर किसी बॉडी को if some body is moving in a straight line, ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, सो एज अपने इनर्शिया की वजह से इट विल कीप ऑन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, until unless some force is there either to increase the speed in this direction or decrease the speed if we apply the force in this direction, or if you apply the force perpendicularly then only it will change the direction। ठीक है, otherwise due to its inertia the body will move continuously in a straight line। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या है हमारा, सर्कुलर मोशन में everywhere we have seen the direction is changing, every point we have seen the direction is changing। so each and every point when the direction is changing, that means there's some push which is coming in towards the center which is changing the direction। इस तरीके से हर point पे there is a push coming in towards the center, so that push is nothing but we call it a centripetal force। that push which is changing the direction in the circular motion, that push is coming as a centripetal force। so हमने kinematics में देख रहे थे हम लोग कि whenever there is a change in velocity, जब velocity मेरी यहाँ पे it got change, if we just translate to some nearby point, it got this direction। so we have seen okay, due to some acceleration, because of acceleration it got changed, the velocity got changed। change in velocity is nothing but the acceleration, so that acceleration is coming by centripetal acceleration in this direction। we have seen in the kinematic that is nothing but my centripetal acceleration। but what is this acceleration, centripetal acceleration कहाँ से आ रही है, it is just because of the centripetal force। so there is always a push there, also we have seen there is always a push to change the direction at each and every point। ठीक है, हर एक पॉइंट पे there is a push, हर एक पॉइंट पे there is a push। अगर ये पुश नहीं होगा, so body is having a tendency to slide in this direction। ठीक है, otherwise यहाँ पे पुश नहीं मिलेगा, तो body is having a tendency to slide in this direction। so that's why there is some certain push which is coming in, which is making this body to follow a circular path। ठीक है, वो push can be, that push is what we call a centripetal force, and that centripetal force is nothing, it's not a new force, it is just whatever the forces we have studied ना, contact forces और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो उनका या तो कंपोनेंट कोई आएगा या फिर रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोज फोर्सेस टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन इज व्हाट वी कॉल अ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रिपेटल फोर्स, सो सेंट्रिपेटल फोर्स इज नथिंग, इट्स नॉट अ न्यू फोर्स, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, it is a resultant of all the forces or their component along the direction of radial। ठीक है, इस रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रेडियल। Centripetal force is also called center seeking, and it is just the existing force kept
ऑब्जेक्ट इन द सर्कल. सो ऑल द फोर्सेज जो भी हमने पढ़ी है, कॉन्टैक्ट हो गई, जैसे फ्रिक्शन हो गई, नॉर्मल हो गई, टेंशन हो गई, सो ऑल दोज फोर्सेज और द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो वट एवर इज द फोर्स इज देयर, या उसका कोई कंपोनेंट विच इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ दिस रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, जितने भी फोर्सेस होंगे. सो एग्जांपल ऑफ दिस हम लोग देखते हैं. सो net force pushing the particle towards the center. Suppose this particle is, so this girl is rotating this particle in this circular motion. So to maintain the circular motion of this, there has to be acceleration in this direction. So the acceleration कैसे आएगी? Because of certain push in this direction. ठीक है, और वो push यहाँ पे कौन provide कर रहा है? This is nothing but the tension which is providing this string, the tension in the string which is providing this centripetal force. So we can say here the centripetal force is nothing but the tension. So tension is the centripetal force, and acceleration is always directly towards the radial direction, always directed towards the center. ठीक है, it is the case of uniform circular motion when my velocity is not changing, so every point my velocity is same. ठीक है, so there is a uniform circular motion at every point my velocity is same, or non-uniform circular motion where every point my velocity got changed, v1 v2 v3. so there velocity change करने के लिए we know कि if the particle is moving in this direction, to change the direction we have to apply the force in perpendicular direction, and to change the velocity either we have to apply the force in this direction or we have to apply the force in this direction. ठीक है, parallel or anti parallel to along the magnitude or along the direction of the velocity, or anti parallel to the direction of velocity. If we apply the force, then its magnitude of velocity will change, or we can say the speed will change. ठीक है, speed will change, और इसके perpendicular जो भी force लगेगी that is going to change the direction. So यहाँ पे एक direction कौन change कर रहा है मेरा? That is a tension. Because of tension only the direction is changing and velocity is not changing, so we will not have to worry about कि इस direction में कितनी इस पे कौन which force is going in this direction. But we will see it in the later part of this lecture what is नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इन दैट वी विल स्टडी कि जो भी इस डायरेक्शन में मेरी नेट फोर्स आएगी दैट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस, दैट इज गोइंग टू चेंज द स्पीड ऑफ दिस मोशन. ठीक है, उसका मोशन का दैट इज गोइंग टू चेंज द स्पीड ऑफ दिस मोशन. ठीक है, यहाँ पे v1 v2 v3 इट में इंक्रीज इट में डिक्रीज, दैट इज कि जो भी फोर्स मेरी अलॉन्ग द टेंजेंट आएगी. ठीक है, दिस इज अलॉन्ग द टेंजेंट, जो भी फोर्स मेरी अलॉन्ग द टेंजेंट आएगी. बट वेन एवर ए बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन, सो एक फोर्स तो हमेशा रहेगी, that is force towards the center. ठीक है, that is a force towards the center because the body is moving in circle, so that means its direction is at every point the direction is changing. So to change the direction at each and every point we need to have a force which is directed towards the center. ठीक है, we need to have a force directed towards the center, and we need to have a acceleration which is directed towards the center which we call a centripetal acceleration. Next में देखते हैं इस वाले केस में कि circular road है and the car is moving on this circular road. If the car is turning around like this, so that means the car is making a circular path. That means if it is moving with some velocity, so there has to be some force which is towards this towards the center, which provides a centripetal acceleration. So what is this force? Who provides this force? It is nothing but the friction is providing the force here. ठीक है, the friction between the wheels. So यहाँ पे जो है, so centripetal acceleration is in this direction, and because of the friction, and the limiting friction is nothing but my mu n, it is a limiting friction. So that is the friction which is providing that the car should not slip. So it is a static friction which is helping my car to take a turn. ठीक है, between the tires and the road. Okay, so here the friction will be my centripetal force. So again, centripetal force is nothing, no new force. It is the force along the direction. It is the resultant of all the forces which are there on the object along the direction of center, along the radial direction. ठीक है, और when the body is in the circular motion then only. So अगर third example देखते हैं, if a person is going through the loop, this loop के through जा रहा है. ठीक है, so in that so it is making a circular motion like this. ठीक है, ये circular motion है, so that means इसका जो radial होगा that will be in this direction. Acceleration, जो radial acceleration will be in this direction. So now what will be my centripetal force in this? Centripetal force will be एक mg नीचे लग रहा होगा इस पर, एक नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा. ठीक है, और सेंट्रिपिटल फोर्स हमने क्या बोला, विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन. तो दैट मीन्स mg
minus n, ठीक है, that is a centripetal force in this case. Okay, that is a centripetal force in this case. Now another one is the, suppose the earth is making a revolution around the sun, so it has been attracted by the gravitational force. So now the gravitational force is providing this circular motion. So then the force of gravity is nothing but my centripetal force of gravity is nothing but centripetal force. Okay, so next we'll move on. We'll see the application of Newton's law in circular motion. So we'll apply the Newton's law. So suppose a puck is there, so we can say it is moving on a horizontal, ये horizontal table है, ठीक है, इसके ऊपर no friction is there and it is moving in a circular it is making a circular motion and it is connected with the string, ठीक है, it is connected with the string. So now, ठीक है, ये यहाँ से it is moving in 1 2 3. अगर there is if the string is not there, then because of the inertia, because suppose the velocity is there in this direction, because of the inertia, the body will move in a straight line, ठीक है, but its direction got changed and it changes from 2 to 5 to 6. It is moving from 2 to 5 to 6 rather than in this direction. So definitely there is some push, it is coming in this direction, which is changing the direction of velocity. So we can say, if Newton's first law says if no force will be there, then the puck will move in a straight line, okay, in this, but the string prevents the motion because of the string is pushing it, pushing the puck, so that prevents the motion. So that is a radial force, the net radial force going in this direction, which is providing the acceleration in this direction. Now with the Newton's second law, along the radial direction, we'll find out the value of this acceleration. So value of this acceleration is nothing but all the resultant of all the forces along this direction. So we can say F centripetal is nothing but mass into acceleration towards the center, that is my centripetal acceleration. So this is by the net resultant forces, ठीक है, और यहाँ पे net resultant force क्या है, it is nothing but the tension here. So tension is providing that centripetal acceleration. So we can say tension is equal to mass into centripetal acceleration, ठीक है. वी हैव अप्लाइड, जैसे हम लोगों ने वी अप्लाइड ना इन आर स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई है, यहाँ पे फ्रिक्शन इज देयर, सो इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन है, सो हाउ डू वी अप्लाई दैट, वी अप्लाई इन दिस डायरेक्शन एक्सेलेरेशन F minus F is equal to m into a. So same way we apply the Newton's second law along this direction. Newton's second law लगाना है. So we have to see the on this object what are the forces along this direction. ठीक है, इस direction में what are the forces, and we equate that forces to m into AC. AC is my centripetal acceleration. ठीक है, that is what we have to do. And centripetal acceleration we have seen, it is nothing but, we have seen in our kinematics chapter, it is mv square by r. We have done the derivation of this. Centripetal acceleration is my mv square by r, where v is my velocity, v is my speed, the magnitude of velocity, v is my velocity. So v is my velocity. Okay, so this centripetal force can be my field force, कोई भी हो सकती है. This can be my gravitational force, this can be my electrostatic. So particle के ऊपर कोई भी force लग सकती है, gravity भी लग सकती है, electrostatic भी लग सकती है, magnetic भी लग सकती है. ठीक है, उन सब का resultant along this direction हमें लेना है, and then we have to make it equal to mv square r or mv ac, because ac is nothing but my v square by r. और any contact force will be there. So कुछ normal हो सकती है, कुछ friction हो सकती है, कुछ spring हो सकती है, कुछ tension हो सकती है इस body पे. Suppose इस body पे अगर friction भी हो, tension भी हो, and there is a normal coming in from normal इस पे ऊपर लग रहा होगा, so it will be in this direction, mg will be in this direction. So it is not going to affect the radial direction में, it is not going to, these two forces will not affect. So normal and mg will not affect the radial acceleration. So we can say will not contribute to the radial acceleration. So what is contributing to the radial acceleration is my this force. This is nothing but my tension. Only tension is contributing. So we have to see what all forces are there on the particle. If the particle is doing a circular motion, ठीक है, we have to see, we have to make the FPD बनाने के बाद we have to see उस पर सारी फोर्सेस लगा देनी है, एंड वंस वी अप्लाई ऑल द फोर्सेस, तो हमें रेडियल डायरेक्शन में वी जस्ट हैव टू मेक इट इक्वल टू m इज इक्वल टू AC, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स लगा के, एंड वी कैन कैलकुलेट वट एवर द थिंग्स रिक्वायर्ड. सो सेंट्रिपेटल फोर्स, एनी फोर्स और कोई भी उसका कंपोनेंट, ठीक है. सो एनी फोर्स और एनी कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स
along the radial, ठीक है, या तो एक ही फोर्स है तो उसका वही फोर्स और उसका कंपोनेंट along the radial. अगर मेरे पास मल्टीपल फोर्सेस हैं तो सम और द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more forces along the radial, and we just equate it to m is equal to v square by r, and this is also equal to m omega square r, because we have seen AC is nothing but my v square by r or my omega square r, ठीक है, because my v is equal to omega r, right? So this way also you can write in uniform circular motion, you can write it like this. Okay, so this is my centripetal, this is my net F net, ठीक है, सारी फोर्सेस का F net will equate it to mv square by r और m omega square r along the radial direction. This is along radial, ठीक है, along radial direction, right? So next we'll move on, we'll see some application of Newton's laws in circular motion. हम लोग कुछ एक situations देखते हैं जहाँ पे circular motion हो रहा है हमारा बॉडी और environment के साथ, और there will be an interaction between multiple bodies. So उनमें circular, एक बॉडी का circular motion हो रहा है, and we'll study the circular motion of that body and we will equate the forces along the radial direction, ठीक है, because we are studying the uniform circular motion. So right now we are not considering any tangential acceleration which will change the speed of the मोशन, ठीक है, अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख रहे हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, centripetal force is a net force acting along the radial responsible for the circular motion. So that force can be anything, that force can be friction, normal, tension, spring force or the gravitational force or the combination of any of these forces, ठीक है. If the circular motion is uniform, the net force we just equate it to mv square by r that we have seen. If the circular motion is non-uniform, that means it is doing a circular motion but its velocity is also changing, v1, v2, so that means some component of force is there, of the push is there along this direction or anti this direction or the anti-parallel this direction, so that it will increase the velocity or it will decrease the magnitude of velocity or the speed, ठीक है. So we have to find out the acceleration, we have to find out the forces, और उसमें दो डायरेक्शन लेनी है for net force का, that is along the tangential which is going to increase or decrease the speed, and we have to equate it, that at we can equate it mdv by dt, that is nothing but my rate of change of speed, ठीक है. That is what we have to do, m at, ठीक है. at is nothing but by, we have seen in the kinematics lecture, you can go through that lecture, we have seen it there कि how at is our rate of change of speed, ठीक है. सो हमारे को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी डोंट हैव टू वरी अबाउट at, वी जस्ट टेक ऑल द फोर्सेस and their resultant towards a radial direction. अगर मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, we have to take all the component or their component of forces along the tangential direction also, ठीक है, and then we will equate it equal to mdv by dt. okay. सो अब कुछ एक एग्जांपल्स और कुछ एक इलस्ट्रेशंस देखते हैं जिसके थ्रू और क्लियर होगा हमारा व्हाट इज सेंट्रिपेटल फोर्स और सेंट्रिपेटल फोर्स कैसे लगती है, ठीक है. सो एक वर्टिकल सर्कल है, फेरिस व्हील, ठीक है, इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वी कैन से इट इज़ वी विल कंसीडर इट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इज सेम, ठीक है, एवरी पॉइंट माई वेलोसिटी इज सेम, ठीक है. इट इज़ डूइंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो ऑब्वियसली इट मस्ट बी हैविंग द एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. एट एवरी पॉइंट इट मस्ट बी हैविंग द एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन. ओके. So acceleration in this direction. So now we will draw an FBD and we will after drawing an FBD we just equate or all the resultant forces along this direction and we will equate it to mv square by r, ठीक है. So FBD बनाते हैं A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, ठीक है. A पॉइंट पे FBD बनाते हैं, A पॉइंट पे FBD बनाया हमने, यहाँ पे mg, इस पे नीचे mg लग रहा होगा, इस पे because it is getting a normal above, so na mg, but it is having the radial acceleration in this direction, और यहाँ पे it is having the radial acceleration in this direction. So इस direction में कितना आ गया, mg minus na is equal to mv square by r. So अगर इस point पे मेरा weightless हो जाए, weightlessness means na will get equal to 0. So we can say at this point, if for weightlessness we'll find the velocity at what speed it will get weightless. That is also, if it's been asked, we can find it out. सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं, बी पे भी देखते हैं, दिस बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन, सो बी पे भी मस्ट बी हैविंग सम रेडियल, इट विल बी हैविंग सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. सो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे देखते हैं, माई मास इज mg, नॉर्मल ऊपर, सो यहाँ पे nb इस पॉइंट पे, ठीक है, nb माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, बिकॉज माई वेलोसिटी इज सेम. सो वी कैन से यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एंड माई सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन विल बी सेम, ठीक है.
So both the points we have seen, right? So अगर मेरे को इस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे इट इज़ गेटिंग अ नॉर्मल फ्रॉम हेयर एंड विद दिस नॉर्मल ओनली इट इज़ गेटिंग माई एक्सीलेशन. सो एन सी, अगर ये वाला पॉइंट मेरा सी है, सो एन सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है. सेम वे इन दिस डायरेक्शन एन डी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू हैव टू. और किसी और पॉइंट पे अगर मेरे को चेक करना है, इफ़ आई हैव टू चेक इट एट सम अदर पॉइंट, सो वी जस्ट हैव टू टेक द कंपोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. तो इसका अगर यहाँ पे मैंने चेक किया, इसका एम जी ये है और इसका नॉर्मल ये है. ठीक है. सो एम जी का कंपोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विल टेक सम एम जी कॉस थीटा. ठीक है. सो यहाँ से विल टेक एम जी कॉस थीटा माइनस एन ए एन ई इज इक्वल टू माई एम वी स्क्वायर बाय आर. So at every place you can do that. Okay, so that is how you apply the Newton's laws. Okay, along the direction there is an acceleration. Always there will be an acceleration. If a body is doing a circular motion, there will always be a centripetal acceleration. हमेशा रहेगी centripetal acceleration. So body का along the radial you have to take the Newton's second law. उसको you have to apply the Newton's second law there and you can equate it with m square by r. Okay, so next we'll move on. इसमें देखते हैं, इसमें बिकॉज ऑफ नॉर्मल एंड एम जी वी आर गेटिंग द सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन. सो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसमें क्या हो रहा है. वी आर गेटिंग द सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन. सपोज एक बॉल है, इट इज़ बीन अटैच विद द स्ट्रिंग एंड इट इज़ बीन रोटेटिंग हेयर. इट इज़ बीन रोटेटिंग हेयर विद द वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. ठीक है. सो इफ इट्स डूइंग अ सर्कुलर मोशन देयर ऑलवेज बी अ radial acceleration. ठीक है. और its radial acceleration will be constant because my velocity is same. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड रेडियल एक्सेलेरेशन विल बी कांस्टेंट. और इसके ऊपर एक n स्क्रीन से बाहर वाली साइड में लग रहा होगा दिस, और एक प्लेन के अंदर जाता हुआ mg लग रहा होगा. ठीक है. सो mg और n विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स सर्कुलर मोशन को कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? इट्स टेंशन. सो नाउ हेयर वी कैन से टेंशन इज इक्वल टू, सो इस डायरेक्शन में टेंशन इज इक्वल टू m इंटू ए सी. ठीक है. सो इट इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है. सो नाउ हेयर द टेंशन विल बी इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन. इस डायरेक्शन में देखते हैं कि बोर्ड है, बोर्ड के अंदर ऐसे ग्रूव बना रखा है. ठीक है. और उसके अंदर द बॉल इज रिवॉल्विंग हेयर इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. यहाँ पे इसको सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे मिल रहा है? सो सपोज इट इज़ मूविंग हेयर. सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड देर आर 3 फोर्सेज विच इज़ वर्किंग हेयर. वन इज एम जी, एक जो ग्राउंड से इसको नॉर्मल मिल रहा है, एंड वन नॉर्मल इट इज़ गेटिंग इट फ्रॉम द वॉल. ठीक है. वन नॉर्मल इट इज़ गेटिंग इट फ्रॉम द वॉल. ठीक है. सो दिस नॉर्मल इज प्रोवाइडिंग द माई सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन. सो यहाँ पे जो नॉर्मल विच यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द वॉल, सो ये वाला जो नॉर्मल, ये जो वॉल की तरफ से इसको नॉर्मल मिल रहा है, सो दैट इज़ प्रोवाइडिंग इट सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन. सो दैट इज़ ऑल्सो द केस when you are traveling in a car and when you take a turn towards your left side and you will fall back in this direction. ठीक है. आप इस डायरेक्शन में मूव कर जाते हो. when you take a turn towards this side you fall back in this side and this normal from this wall. ठीक है. ये कार का जो ये जो गेट है, फ्रॉम हेयर यू आर गेटिंग ए नॉर्मल. ठीक है. सो फ्रॉम द आउटसाइड ऑब्जर्वर, बाहर से देखेंगे, यू आर टेकिंग दिस टर्न. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल, ये वाला जो कार का वॉल है, इसकी वजह से you are getting a normal. So because of this normal you are getting m v square by r. You could able to move. ठीक है. But if you are there is one more thing which you are going to see in the later part or maybe the tomorrow lecture, that is we call a centrifugal force. So that is also is applicable here. We'll see it in the next lecture. ठीक है. हम लोग बाद वाले lecture में देखें. But right now for the scope of this, कि यहाँ पे जो normal from the wall लग रही है, this normal from the wall, it is providing its centripetal acceleration. ठीक है. It is providing the centripetal acceleration. और same way अगर आपकी कार है and it is moving in this circular direction and it is making a turn here, जब ये यहाँ पे turn करेगी, you will be, if you are sitting in the car, you will fall back in this direction and this normal will be coming from this normal will be coming from the wall, and because of this normal you are taking this turn. You are taking this turn along the car because of this normal. So here the normal is equal to your MAC. ठीक है. This normal from the car. Okay. For the ground observer, you are moving like this only. So that's why you are getting this normal is equal to MAC. Next situation देखते हैं. इसके अंदर क्या है मेरा? एक डिस्क है which is rotating, और उसके ऊपर you have kept a block here on the surface, or this surface is rough
ठीक है, surface is rough. So now this block is also moving along with the disk, so that means there is no relative motion. जब relative motion नहीं है, so there must be a friction. So अब यहाँ पे कौन provide कर रहा है इसको circular motion? It is because of friction. It is because of friction it is getting a circular motion. So now we'll see only external force on this is the friction, ठीक है. So because of this friction it is getting a centripetal acceleration in this direction. So we can equate friction is equal to mv square by r, m omega square r, because we are given the omega here, so m omega square by r, और इसके normal from the disk it is getting an mg on the disk, or mg is the gravity, okay, gravitational force, okay. So because of normal only, because of friction only, because of static friction, it is not moving, because of static friction. The static friction is only providing the acceleration here, okay, centripetal acceleration. So in this case my centripetal force we can say it's a friction, ठीक है. और नेक्स्ट एक और देखते हैं. इसके एक ऐसे साइन कर्व है, सपोज साइन कर्व है ऐसे, एंड द कार इज मूविंग अप द हिल लाइक दिस, ठीक है. कार इज मूविंग अप द हिल एंड देन बिलो द हिल इट इज कमिंग, ठीक है, इट इज कमिंग एंड हेयर इट इज कमिंग. सो वी हैव टू सी द acceleration in these two places, and the velocity of the car is constant at all the places, ठीक है. So यहाँ से जाएगा, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, so it will be having it is having a, this is my circular motion, it is a curvilinear motion, but if you see it is a radius of curvature, it is a circular motion it is making. So each and every point it is making a circular motion, ठीक है. each and every point if you see it is a radius of curvature. So यहाँ पे सबसे छोटा radius of curvature बन रहा होगा at this highest point and the lowest point. This is a it is a smallest radius of curvature यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है. सो हमने देखा था रेडियस, सो वी हैव टू इक्वेट द फोर्सेस अलोंग दिस सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है. यहाँ पे इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन है बिकॉज इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पे कितना हो गया इसका, इट इज़ एम जी नीचे और ग्राउंड से नॉर्मल मिल रहा है. सो एम जी माइनस एन वन इज़ माई सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन. सेम वे अगर कार ऐसे नीचे से ऊपर इसमें जा रही है तो यहाँ पे कितना है मेरा एन टू माइनस एम जी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन, ठीक है. सो यहाँ पे अगर देखेंगे इफ वी सी माई एन टू इज़ माई एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, और एन वन इज़ माई एम जी माइनस एन वी स्क्वायर बाय आर. सो इन बोथ द केसेज इन द टॉप मोस्ट एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट वी हैव सीन कि एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट माई नॉर्मल इज़ मोर, so the weight is more. So if we have some weighing scale here, or the person will be standing here, so he will weigh more at this point than in this point, ठीक है. he will weigh more at this point than at this point, ठीक है. so because n2 is more at this point, okay, right. so next we will see. अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रिक्शन, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स इज़ बिन प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग, ठीक है. एक सेंटर से यहाँ से इट इज़ फिक्स्ड हेयर, और एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक बॉल लगी हुई है एंड इट इज़ रोटेटिंग हेयर, ठीक है. सो नाउ द स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड अ बिट व्हेन इट इज़ रोटेटिंग, स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड अ बिट. सो स्प्रिंग फोर्स जो इस पर लग रही होगी दैट इज़ नाउ हेयर प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल force to it. So here we can see kx is nothing but my centripetal force. Centripetal force कितना है m v square, और टोटल r कितना हो जाएगा इसका इनिशियल लेंथ प्लस इसकी elongation, ठीक है. So that is my, from here if you take x here and you equate it, you will get the value of x in a quadratic equation, and if you solve it by the roots you will get the two values of x here, okay, got it. So two values means either it is extended or here if it's compressed. So there also it is so there also in that situation also, if it's two cases 2x value is going to come. So we'll see the roots of these x and we'll find out two values, but two values I'll have to think on it. I don't know what is the significance of these two values. एक तो x आ जाएगा जो आपका extend हो जाएगा यहाँ पे, जो दूसरा x है I don't know what is the significance. I need to go through it and I'll let you know ना, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बार इसको देखता हूँ कि दो वैल्यूज़ जो आ रही हैं, इफ़ इट्स ए नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दोस, ठीक है. एक का तो सिग्निफिकेंस यही होगा, स्ट्रेच होगा, सो जिसकी वजह से यहाँ पे पुश कर रहा होगा, और दूसरे का देखना पड़ेगा एक बार. आई लेट यू नो ना, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई लेट यू नो. बट हेयर we have seen the Newton's second law,
ऑन द एप्लीकेशन टूवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन हमने देखा बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से लग रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू एक क्वेश्चन देखते हैं कि वी आर हैविंग दिस रॉड, ठीक है, रॉड पे दो ऐसे वी आर हैविंग टू बॉल्स कनेक्टेड विद द रॉड, ठीक है, और यहाँ पे नॉट द रॉड, इट इज़ अ स्ट्रिंग, इट इज़ अ स्ट्रिंग, वी आर हैविंग टू balls connected and it is rotating here, it is rotating with each ball, each ball is rotating with some omega, ठीक है, we it is so it is rotating with some omega, ठीक है, so this omega से रोटेट कर रहे हैं और मेरे को दे रखा है कि मास बोथ मास इज 0.5 kg, लेंथ इज यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है मेरी L और यहाँ से टोटल लेंथ आ गई 2L फॉर दिस A, ठीक है, एंड इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। नाउ वी नो देखिए इफ़ इट्स रोटेटिंग विद ओमेगा, सो दोनों का ओमेगा A इज इक्वल टू ओमेगा B होगा, ठीक है, ओमेगा A का ओमेगा A मेरा कितना है, ओमेगा इज़ नथिंग बट VA बाई इसका L इज इक्वल टू ओमेगा B हमारे को दे रखा है, इट इज़ 4, ओमेगा इज़ 4 एंड ओमेगा B VB by L and this is by 2L. So if I put the value of VA here, VA is my 4, so 4 वैल्यू डालूंगा तो VB मेरा आ जाएगा, it is nothing but my 2, ठीक है, VB मेरा यहाँ से आ गया 2, so I have my speed आ गई दोनों की मेरी VA और VB की। Now I'll apply कि both are doing the circular motion, uniform circular motion है, their velocities are same, sorry not the velocity, their speed are same, both are doing the uniform circular motion। तो इसके अंदर पहले हम ये वाला देखते हैं, इस पे FD अप्लाई करते हैं, इस पे जो है इट इज़ हैविंग अ टेंशन इन दिस साइड एंड दिस टेंशन इज along the radial direction and because of this tension it is having the circular motion because centripetal acceleration, and we'll equate it, TA is equal to my mVA square by टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से आता है 2L, ठीक है, सो दिस इज़ वन इक्वेशन। फ्रॉम हेयर इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ VA, L की वैल्यू आपको पता है एंड यू गॉट द टेंशन हेयर इज TA इज 8 न्यूटन, ठीक है। अब B को देखते हैं, B पे एक तो टेंशन एक इधर लग रहा होगा, दैट इज TA, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड, दिस इज द सेम स्ट्रिंग, सो यहाँ पे एक TA इधर टेंशन लग रहा होगा और एक टेंशन इधर लग रहा होगा TB, ठीक है, दो टेंशन आ रही होंगी, टेंशन TB। इसको जो इन दिस द रेडियल एक्सेलरेशन इज दिस AC, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, TB माइनस TA इज माई mVB स्क्वायर बाय L L इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, सो आई पुट इट, TA की वैल्यू मैंने डाल दी 8 न्यूटन, VB मुझे पता है 2 एंड M और L पता है, आई गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन इज 12 न्यूटन, ओके, गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन इज 12 न्यूटन हेयर एंड 8 न्यूटन हेयर, राइट। नेक्स्ट विल मूव ऑन, विल सी द यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी वेलोसिटी विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है, वेलोसिटी विल ऑलवेज बी सेम एंड देयर इज वन एक्सेलरेशन ओनली विच इज टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द पार्टिकल मूव्स विद वेरिंग स्पीड इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, यहाँ पे द स्पीड इज चेंजिंग, सो यहाँ पे अगर V1 है, हेयर इट विल बी V2, हेयर इट विल बी V3, तो स्पीड विल बी changing at each and every point, so it will not be constant, so now it is having two acceleration, one acceleration towards the radial direction which is letting the direction change, one is towards the tangential direction FT, so this is FR is my centripetal force and FT is my tangential force which is changing its tangential acceleration which is varying, because of that its speed is varying, ठीक है, so tangential acceleration आ गया मेरा in this direction and my radial acceleration आ गया मेरा in this direction, centripetal acceleration, तो ठीक है, F net मेरा is in this direction, so total मेरा जो acceleration vector होगा that is the vector sum of A radial and A tangential, ठीक है, और A tangential क्या होता है मेरा, nothing but A tangential is my rate of change of speed, that is my tangential acceleration, okay. That is what we have already seen in our kinematics lecture, okay, radial acceleration, tangential acceleration। Now in our cases, now we have to equate इस वाली डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वी हैव टू इक्वेट इट विथ mdv/dt, उस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन में इक्वेट कर देंगे, सो एंड हेयर वी विल इक्वेट इन, सो अगर मेरा इस डायरेक्शन में नेट फोर्सेस हम करेंगे दैट विल इक्वेटेड टू m/at, और इस डायरेक्शन में जितनी भी हमारी फोर्सेज होंगी हम इक्वेट कर देंगे रिजल्टेंट फोर्सेज ma × c, ठीक है,
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे जो ए टी को विल डू इट एम डी वी बाई डी टी. ठीक है, विल सी वन एक इन दिस देखते हैं. इन दिस एग्जांपल यहाँ पे एक बॉब है पेंडुलम, इट इज़ बीन कनेक्टेड हेयर, सो इट इज़ बीन पुश्ड इन दिस साइड. ठीक है, इट इज़ बीन पुश्ड इन दिस साइड. ओके, सो नाउ विल सी कि इसके ऊपर व्हाट आर द, इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसके ऊपर देखते हैं व्हाट आर द forces, if there is any tangential force on this, and what are the radial. So it is doing a circular motion, so obviously it must be having a radial acceleration or the centripetal acceleration होगा, and it is having some tangential acceleration due to the component of mg. ठीक है, so इस पे पहले हम will apply the FBD बनाते हैं. इस पर कौन कौन सी फोर्सेज हैं. माई mg का एक cos थीटा कंपोनेंट है और एक साइन थीटा कंपोनेंट है. ठीक है, और एक टेंशन इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में मेरी नेट एक्सीलरेशन कितनी आ गई, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम. अगर इसकी वेलोसिटी है तो वी कैन से एम वी स्क्वायर बाय आर. अगर इस डायरेक्शन में कोई मेरी वेलोसिटी है तो ये एल है मेरा, तो वी कैन पुट इट एम वी स्क्वायर बाय एल. ठीक है, और इस डायरेक्शन में इट इज़ हैविंग अ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सो इसकी वेलोसिटी विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग एज इट रीचेज अप टू हेयर, और फिर यहाँ से इट विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग. जब यहाँ पे पहुँच जाएगा रुक जाएगा. ठीक है, देन इट विल, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यहाँ पे मैक्सिमम पहुँचेगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर रुक जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट, दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट. ठीक है, सो इट इज़ डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ हैविंग द डायरेक्शन इन दिस, इट इज़ हैविंग दिस डायरेक्शन. सो यहाँ पे इसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, it is nothing but g sin theta. ठीक है, that is my tangential acceleration. Now we'll apply the resultant Newton's second law along this direction. ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्शन along this direction we have applied it and we have got this equation. ठीक है, अब हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं. इस डायरेक्शन में I don't have any other component. ठीक है, I don't have any other component, only component which I am having in this direction is mg sin theta. So I'll put mg sin theta is equal to m into tangential acceleration. इससे कैंसिल, माई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी जी साइन थीटा. इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द ओवरऑल नेट एक्सीलरेशन ऑफ दिस, रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट आई कैन फाइंड इट आउट ए टी स्क्वायर विच इज़ माई दिस जी साइन थीटा स्क्वायर, और ए आर का निकालना है मेरे को, ए आर इज़ माई दिस वी स्क्वायर बाई एल. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट वेन एवर देयर इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे, उससे और क्लियर होगा. ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी इन द डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. ये एग्जांपल है, इट इज़ एग्जांपल वेयर सम रिलेशनशिप इज बीन गिवन कि काइनेटिक एनर्जी है आपकी, इट इज़ वेरिंग विद ए एस स्क्वायर वेयर एज इज द डिस्टेंस इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर. ठीक है, सो इट इज़ लाइक दिस, सो इट इज़ द डिस्टेंस कि कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर. ठीक है, और ये है काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरिंग एज ए एस स्क्वायर. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो इट्स बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द टेंजेंशियल फोर्स एंड द रेडियल फोर्स. टेंजेंशियल फोर्स क्या होती है मेरी, डी वी बाई डी टी, दैट इज़ माई टेंजेंशियल फोर्स. दिस इज़ माई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ए टी. इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ टी. और रेडियल कितनी होती है, रेडियल इज़ माई रेडियल एक्सेलेरेशन कितनी होती है, और द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इट इज़ एम वी स्क्वायर बाई आर. इट्स माई रेडियल अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी स्क्वायर हमारा यहाँ से आ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. वी स्क्वायर की वैल्यू मेरी आ गई, ये दिस इज माई वी स्क्वायर, और दिस इज माई मैग्नीट्यूड आया है. सो दिस डायरेक्टली आई कैन पुट इट माई रेडियल एक्सेलेरेशन वी स्क्वायर बाई आर, एंड आई पुट द वैल्यू, आई गॉट दिस रिलेशनशिप. ठीक है, 2a s स्क्वायर बाई एम आर. अब फॉर द रेडियल आई नीड टू डिफ्रेंशिएट इट. डी वी बाई डी टी होता है ना उसमें, डी मॉड बाई डी टी. सो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ मॉड वी स्क्वायर. ठीक है, आई डिफ्रेंशिएट, आई इसको अंडर रूट ले लो. सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a बाई एम इंटू एस. ठीक है, अब नाउ आई डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस डी वी बाई डी टी. आई डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विल गिव मी माई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. ठीक है, इससे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मिल जाएगी. सो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मिल गई और रेडियल आ गई. सो आई कुड एबल टू फाइंड आउट माई मास से मल्टीप्लाई किया, मास गिवन है, आई गेट माई टेंजेंशियल फोर्स एंड द रेडियल फोर्स. ठीक है, सो टेंजेंशियल करते हैं. टेंजेंशियल में डी वी बाई डी टी, वी मेरा था, आई हैव टेकन इट आउट हेयर, और एस को हो गया मेरा डी एस बाई डी टी. डी एस बाई डी टी क्या होगा अगेन मेरा, इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड. वी डाल दिया, एंड वी को अगेन आई पुट इट अगेन रूट टू बाई एम इंटू एस. सो फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया, ए टी इज माई 2a बाई एम. ठीक है, ए टी आ गया, ए आर आ गया, एंड यू कैन एबल टू फाइंड आउट एफ टी एंड एफ आर. राइट,
ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। यहाँ से you kept a block of mass m, coefficient of friction between the turntable and the block is mu, ठीक है, इनके बीच में coefficient of friction is mu. Now the table turn and start rotating with the uniform acceleration alpha, ठीक है, it is now started rotating and it's rotating with the alpha. That means it is rotating with alpha, and we know tangential acceleration is nothing but my alpha into at any, अगर यहाँ पे मेरे को इसकी tangential acceleration देखनी है, at is my alpha into r. इट डिपेंड्स कि किस डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन देख रहे हो, इस डिस्टेंस पे सो इट इज़ अल्फ़ा 80 जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होती है एट एनी पॉइंट इज़ माई अल्फ़ा इंटू आर. सो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा, सो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा दैट इज़ इंटू अल्फ़ा, दैट इज़ माई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. सो इट इज़ बीन गिवन. नाउ द टेबल स्टार्ट रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा है, सो will give me 80 is my alpha into r, ठीक है, इससे मेरा 80 मिल गया. Find the time after which the slipping occurs between the block and the table. So we have to find out the time when the slipping happens. Slipping कब होगी, इसको जो रोटेट करा रहा है कि दिस ब्लॉक को, एक तो 80 इज़ गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड, ठीक है, जो इसको रोटेट करा रहा है दैट इज़ बिकॉज इन द फोर्स इन दिस रेडियल डायरेक्शन इज़ नथिंग बट माई इन दोनों का सॉरी. सो इस पर एक मेरी 80 इधर लग रही है एंड आई एम हैविंग द रेडियल एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन ऑन द डिस्क. ये ब्लॉक जो कर रहा होगा सर्कुलर मोशन ऑन द डिस्क कर रहा होगा, इसके ऊपर नेट मेरी एक्सीलरेशन आ रही होगी इन सम डायरेक्शन, इन दोनों के रिजल्टेंट, ठीक है. ये जो नेट एक्सीलरेशन आ रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई फ्रिक्शन. अगर ये फ्रिक्शन नहीं होती सो दिस ब्लॉक वुड हैव स्लाइड. सो ये जो एक्सीलेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सीलेशन जो द ब्लॉक इज गेटिंग द एक्सीलेशन बिकॉज ऑफ माई फ्रिक्शन ओनली, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द सर्फेस. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो द ब्लॉक वुड हैव स्लाइड ऑन द टेबल. सो अब मेरे को निकालना है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्लिपिंग अकर. स्लिपिंग कब होगी, जब मेरी जब मेरी एक्सीलेशन है विच इज़ माई this acceleration, so my force जो इस डायरेक्शन में मेरी फोर्स हो जाएगी, that force which is having m into a that will get more than my friction, ठीक है. अगर उसकी acceleration इतनी बढ़ जाएगी that will get more than a friction, that I can say the slipping will start and the maximum limiting friction कितनी होगी इसकी mu mg. इससे जैसी मेरी फोर्स बढ़ जाएगी मेरी, ठीक है, I'll have my slipping start, ठीक है. that is what we have to find out, कि find the time after which the slipping occurs. Now we'll proceed. After time t we are given the अल्फ़ा दे रखा है हमारे को, अल्फ़ा से मेरा 80 आ गया एंड 80 से आई कोड एबल टू 80 इज़ माई अल्फ़ा आर. इससे आई कोड एबल टू फाइंड आउट माई वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी. सो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू यू प्लस 80 इंटू टी, ये 0 है. सो आई गॉट माई वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी इज़ नथिंग बट माई 80 इंटू टी, ठीक है, और 80 को मैंने लिख दिया अल्फ़ा आर. सो आफ्टर टाइम टी माई वेलोसिटी विल बी अल्फ़ा आर टी, ठीक है. दिस इज़ माई velocity means magnitude of velocity, it is my speed कितनी हो जाएगी इसकी आफ्टर टाइम टी, अल्फा आर टी, ठीक है. एंड माई रेडियल एक्सीलरेशन कितनी होगी, v बिकॉज इट इज़ मूविंग इन सर्कुलर मोशन, दैट इज़ माई v स्क्वायर बाय आर. सो v की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ से डाल दी. सो इट इज़ माई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गई इसकी अल्फा इंटू आर दैट वी हैव सीन इट हेयर, ठीक है. सो यहाँ से मेरी ए आर आ गई, 80 आ गई, एंड आई जस्ट फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ एक्सीलरेशन 80 और ए आर का. So this A, I just for the slipping, this driving force should be less than my limiting friction, or for to get the maximum value I have to find out the time after which the slipping start. I'll have to equate it with my maximum limiting friction. तो इसको मैं limiting friction से equate कर दिया, इसको force mass into acceleration जो इसका resultant आया मेरा 80 का अल्फ़ा स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसका ए आर स्क्वायर का होगा मेरा अल्फ़ा फोर टी फोर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है. ये मेरा ए आ गया अंडर रूट, ओके, इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी, ठीक है. दैट इज़ अ मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है. इससे ज़्यादा जैसी मेरी हो जाएगी इट विल स्टार्ट स्लिपिंग. नाउ आई जस्ट कैंसिल एल एंड यहाँ से इसका स्क्वायर कर दिया बोथ द साइड्स एंड आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है. टी निकालना है मेरे को. सो फ्रॉम हियर द टी वी कैन एबल टू फाइंड आउट बिकॉज टी इज़ द ओनली अननोन, ठीक है. टी की वैल्यू मेरी आ गई, रेस्ट पावर 1/4, ओके.
सो वंस अगेन इस क्वेश्चन में क्या था हमारा कि एक डिस्क है विच इज़ रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है, दैट मीन्स इसकी ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ओमेगा धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है, ओमेगा इंक्रीज कर रही है, ऑब्वियसली इट इज़ इट्स वेलोसिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज, तो धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इनिशियली वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। सो एक तो इस पर बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग, सो रोटेटिंग की वजह से एक इस पर रेडियल एक्सेलरेशन होगी और एक इस पर टेंजेंशियल होगी, तो रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माई अल्फा इंटू आर दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन के हाउ योर एक्सेलरेशन इज देयर। जैसे जैसे मेरी एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, दिस विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे my velocity will be keep on increasing with time ना, velocity will be keep on increasing with time, AR will be keep on increasing with time, AR time के साथ बढ़ता रहेगा, my acceleration will be increasing with time then, so acceleration मेरे increasing with time होता रहेगा। so एक point ऐसा आएगा कि जब टोटल फोर्स जो होगी मेरी विच इज़ जो मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन है मेरा, दैट इज़ कंटेनिंग दिस मोशन, इसको रोक रहा है इसको मूव करने से टोटल फोर्स को, विच इज़ इक्वेटिंग विद द लिमिटिंग एफ लिमिटिंग, सो एक पॉइंट पे जाके वो ओवरकम कर जाएगा, सो एम ए विल बी ग्रेटर देन दिस एफ लिमिटिंग, सो वो वाला पॉइंट पे मेरे को टाइम बताना है। सो व्हाट वी हैव डन द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम टाइम कब होगा, वी हैव इक्वेटेड विद द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से इक्वेट कर दिया and I have got the value of t as this, okay, that is what we have done in this question, right? So next we'll move on, next question देखते हैं। so इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल चेम्बर है मेरा, यहाँ पे एक पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, ठीक है, और इट इज़ पूछा गया है कि इसको कितना इट इज़ बीन रोटेटेड, ठीक है, इसको रोटेट कर रहे हैं विद सम ओमेगा, तो ये पूछा है कि कितना मिनिमम इसकी यहाँ पे वेलोसिटी हो कि जब ये रोटेट कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा। सो कितनी मिनिमम यहाँ पे वेलोसिटी हो, दिस वेलोसिटी कि अगर मैं ये ग्राउंड हटा दूँ यहाँ से, द पर्सन शुड नॉट फॉल बैक, ठीक है, पर्सन शुड नॉट फॉल बैक। तो यहाँ पे कैसे होगा कि अगर ये रोटेट कर रहा है दैट मीन्स इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी हेयर एट दिस पॉइंट विच इज़, अगर मेरा ओमेगा बढ़ता जा रहा है तो v विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इतनी हाई होगी बिकॉज ऑफ दैट, उस हाई वेलोसिटी की वजह से, दैट हाई वेलोसिटी अगर ये रोटेट कर रहा है, फॉर इंस्टेंस दिस इज़ रोटेटिंग, अगर ये रोटेट कर रहा है, सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, और जो पर्सन रोटेट कर रहा है इसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रही होगी मेरी, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस नॉर्मल, ग्राउंड की वजह से जो इस वॉल की वजह से जो नॉर्मल लग रही होगी, इसी वजह से हो रही होगी ना, ये जो वॉल है मेरी, दिस वॉल इज़ प्रोवाइडिंग द नॉर्मल, विच दिस नॉर्मल फ्रॉम द वॉल is nothing but my centripetal acceleration m into, because of this normal my centripetal force is coming in, so centripetal force क्या होती है मेरी, m into v square by r, ठीक है, जितनी ज़्यादा मेरी v बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा मेरी v बढ़ती जाएगी उतना ही मेरा नॉर्मल इज़ गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, नॉर्मल इज़ गोइंग टू इंक्रीज, दैट मीन्स इसके ऊपर नॉर्मल बढ़ रहा होगा मीन्स कि इस पर फ्रिक्शन इज़ नथिंग बट माई म्यू इंटू एन, यहाँ पे नॉर्मल बढ़ रहा होगा, दैट मीन्स फ्रिक्शन बढ़ रही होगी, एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम इट विल होल्ड द वेट ऑफ दिस पर्सन एम जी, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि किस मिनिमम वेलोसिटी पे कितना ये रोटेट करे, कि किस मिनिमम वेलोसिटी पे दिस पर्सन आफ्टर रिमूविंग दिस फ्लोर कि ये पर्सन नीचे ना गिरे, ठीक है, वो निकालना हमने। तो विल ड्रॉ एन एफ है, एफ बनाते हैं एम जी, और इस पे दिस नॉर्मल इज़ कमिंग बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग, यहाँ से इट इज़ गेटिंग ए नॉर्मल, इज बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल ओनली इट इज़ गेटिंग अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई हैव इक्वेटेड विद नॉर्मल विद न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड दिस फोर्स दिस फ्रिक्शन ऊपर साइड में बिकॉज इट इज़ हैविंग ए टेंडेंसी टू फॉल डाउन, फ्रिक्शन ऊपर हो गई, एम जी नीचे हो गई, ठीक है, और फ्रिक्शन हमें निकालनी है, वी मिनिमम निकालनी है, सो आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन डाल दी, म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। सो बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, इससे ऊपर जितनी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी माई फ्रिक्शन विल बी लेसर देन दिस, ठीक है, उसके लिए अगर मैं वी की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा तो फ्रिक्शन कम यूटिलाइज होगा मेरा, ठीक है, फ्रिक्शन मेरा कम यूटिलाइज होगा। सो फ्रिक्शन की बिकॉज फ्रिक्शन हैज़ टू हैंडल दिस एम जी ओनली ना, एंड जितना मेरा अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पे तो मेरा नॉर्मल बढ़ता जाएगा, तो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। अगर मेरा नॉर्मल 10 है और मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पॉइंट, मेरा नॉर्मल 10 है और मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पॉइंट पे वी कैन से इट इज़ कमिंग 5, ठीक है, जैसे ही मेरा नॉर्मल 20 हो गया इट इज़ कमिंग 10, बट एम को हैंडल करने के लिए 7 चाहिए ना, 7 चाहिए, तो 7 तो मेरा यहीं पर आ जाएगा, जैसे मेरा कुछ एक वेलोसिटी पहुँचेगी तो 7 तो मेरा यहीं पर आ जाएगा,
अगर मैं वेलोसिटी और भी बढ़ाता जाऊँगा तो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बढ़ता रहेगा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन तो मेरे को mg के बराबर ही चाहिए, सो आई डोंट नीड मोर। सो तभी मेरे से पूछिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी रहे यहाँ पे कि मेरा नॉर्मल इतना आ जाए जिसकी वजह से मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर mg हैंडल हो जाए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इट्स बीन आस्क्ड। तो I just put the value of friction as mu n, maximum limiting friction। म्यू की वैल्यू 0.2, एन की वैल्यू मैंने डाल दी फ्रॉम हेयर mv²/r इज इक्वल टू mg। यहाँ से v की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। सो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है देन विद दैट स्पीड इट विल नॉट फॉल, और इससे ज़्यादा तो होगी स्पीड तो ऑब्वियसली इट विल नॉट फॉल, इससे जैसी कम हो जाएगी स्पीड इट विल फॉल, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ये टेबल है, इसके ऊपर एक होल है, यहाँ से एक बॉल ऐसे इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और एक नीचे जाके इस स्ट्रिंग से ये m2 मास से ये बॉल कनेक्टेड है, ठीक है। और ये मास कैसे होल्ड हो रहा है, दिस बॉल इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन एंड इट इज़ होल्डिंग दिस मास, ठीक है। दिस बॉल इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन विच इज़ होल्डिंग दिस मास, ठीक है। बिकॉज इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन बिकॉज द टेंशन इज कमिंग इन, ठीक है। बिकॉज ऑफ टेंशन इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन इज कमिंग बिकॉज ऑफ टेंशन, एंड दिस टेंशन इज बिकॉज ऑफ mg's, एंड बिकॉज द स्ट्रिंग इज सेम वी कैन इक्वेट बोथ द टेंशंस, ठीक है। सो we'll equate both the tension, so t is equal to m2g एंड t इज इक्वल टू m1v²/r। यहाँ से इक्वेट करूँगा, मेरी वेलोसिटी आ गई, कितनी वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहे हैं कि ये इसको होल्ड कर पाए। सो मेरी वेलोसिटी आ गई यहाँ से m2g/r/n1। इतनी वेलोसिटी से जब ये रोटेट कर रहा होगा ये इतनी वेलोसिटी से, तो इट विल होल्ड द मास m2, ठीक है। अगर मैंने मास बढ़ा दिया, दिस मास इंक्रीज, सो यू हैव टू इंक्रीज द वेलोसिटी कि इसको घुमाने की वेलोसिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा टू होल्ड दिस मास, ठीक है। अगर आपका मास कम है तो यू कैन रिड्यूस डाउन द वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन योर मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ओके, एंड इट इज़ इनवर्सली वेरीज विद द मास ऑफ दिस स्मॉल। सो बेसिकली अगर आपको ये हैवी मास को होल्ड करना है, सो यू नीड टू इंक्रीज द velocity to hold this, okay। So that is what the relationship we have got, okay, how you are going to hold the mass of this with the rotating rotating body, this m1। दूसरे केस में पूछा है कि अगर मैं m1 को m2 को आई जस्ट इंक्रीज द वेट ऑफ दिस m2, ठीक है। अगर ये रोटेट कर रहा है, ऑलरेडी रोटेटिंग पोजीशन में है, और मैंने m2 के ऊपर एक छोटा सा वेट और डाल दिया, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अगर मैंने जैसे m2 के ऊपर छोटा सा वेट डाल दिया, सो व्हाट विल बी द केस, और m2 से छोटा सा वेट मैंने हटा दिया जो ऑलरेडी ये रोटेट कर रहा है, सपोज ऑलरेडी ये इस पर रोटेट कर रहा है सम वेलोसिटी, ठीक है। सम वेलोसिटी से एट सम रेडियस r इट इज़ रोटेटिंग। अब मैंने क्या किया, पहले केस में मैंने ये जो m2 है मेरा, m2 के ऊपर मैंने एक छोटा सा मास रख दिया। उस छोटे से मास रखने की वजह से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस, और यहाँ पे जो मेरा m2 है इससे मैंने छोटा सा मास निकाल दिया, ठीक है। उसको करने से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस, दैट इज़ व्हाट इट्स बीन आस्क्ड के क्या इफेक्ट होगा। सो अगर मैंने m2 के ऊपर एक छोटा सा मास रख दिया, दैट मीन्स इसका ओवरऑल मास बढ़ जाएगा m2 प्लस जो भी एक्स्ट्रा मास रखा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन बढ़ेगी, ये टेंशन बढ़ेगी। सो दिस टेंशन इज गोइंग टू इंक्रीज। अर्लियर टेंशन वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस सर्कुलर मोशन वॉज m1 इज m1v²/r, बट नाउ यहाँ पे टेंशन बढ़ गई, सो ये इसको द टेंडेंसी टू पुश इट इन साइड, ठीक है। ये इसको बॉल को अंदर की साइड में पुश कर देगा, बिकॉज नाउ t इज ग्रेटर देन माई m1v²/r, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू पुश, द टेंशन इज गोइंग टू पुश द ब्लॉक इन साइड, सो नाउ इट इज़ गोइंग टू डू अ इनवर्ट स्पाइरल लाइक दिस, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू पुश इनवर्ट स्पाइरल, तो इसका रेडियस डिक्रीज हो जाएगा एंड द वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। सो विल सी टेंशन इंक्रीज हो गई, सो इट इज़ गोइंग टू पुश इट इनवर्ट, सो इसका रेडियस से डिक्रीज हो जाएगा। पहले आर से मूव कर रहा था, नाउ इट इज़ गोइंग टू डू रेडियली लाइक दिस, तो इसका रेडियस डिक्रीज हो जाएगा एंड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी टू मेंटेन द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। बिकॉज देर इज़ नो द वेलोसिटी, देर इज़ नो चेंज इन, सो ये जो टेंशन लग रही है, वी हैव नॉट स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बट आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि दिस टेंशन इज अ वर्टिकल, ये वेलोसिटीज की ये है, सो दिस टेंशन इज इन वर्टिकल टू दिस, ठीक है। द टेंशन इज इन वर्टिकल टू दिस, सो टू मेंटेन to maintain the angular momentum, because angular momentum will be conserved, because now जो force लग रही है that is perpendicular to this velocity, so इस direction की we have to maintain the angular momentum is nothing but my mv into r, ठीक है, mv into r, तो ये जो रेडियल डिस्टेंस होता है, तो अगर मेरा रेडियस कम हो गया, so we have to increase the value of v,
बिकॉज दैट इज नीड्स टू बी कॉन्स्टेंट, एम वी आर नीड्स टू बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो यहाँ पे एम वी आर होगा यहाँ पे एम वी आर होगा, बिकॉज देर इज नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल, सो टू मेंटेन द बिकॉज द टेंशन इज अप्लाइंग परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से माई एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। सो आई कैन से माई टेंशन, अगर मेरी टेंशन बढ़ेगी सो माई रेडियस विल बी डिक्रीज, तो इट विल मूव लाइक स्पायरल इनसाइड, ठीक है, अंदर की साइड में इट विल मेक ए स्पायरल लाइक दिस, ठीक है, अंदर की साइड में हल्का सा स्पायरल, छोटा सा आर बन जाएगा, एंड वो आर इतना छोटा हो जाएगा दैट इट इज गोइंग टू कंपनसेट द एक्स्ट्रा वेट, जितना एक्स्ट्रा टेंशन आई है तो इट इज गोइंग टू कंपनसेट, तो छोटा सा आर बन गया एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो, ठीक है। और अगर मैं मास हटा लूँ तो यहाँ से मेरी टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी, टेंशन यहाँ से कम होगा, सो इट विल स्पायरल आउट, सो यहाँ पे इट विल स्पायरल आउट, तो वो आर इतना इंक्रीज हो जाएगा और वेलोसिटी उसकी अकॉर्डिंगली उतनी कम हो जाएगी, सो इट विल बैलेंस द वेट विच इज़ बीन रिमूव्ड, टू बैलेंस द until the balance restored, okay। So पहले केस में it will be spiral in, दूसरे केस में it will be spiral outward, okay। So that is going to happen if you put a weight, if you remove the weight from it, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिस्क है, उसके अंदर यू हैव मेड अ ग्रूव अलॉन्ग द रेडियस, एक ग्रूव बनाया हुआ आपने, यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल with respect to table at a distance L from the center, ठीक है, we have to find out the speed of this particle। so इस particle की speed, what will be the speed if it's rotating with some omega, so इसकी speed कितनी होगी at each and every point, यहाँ पे each and every point it is having a different speed because it is rotating with omega, so यहाँ पे इसकी speed कितनी होगी, यहाँ पे इसकी speed कितनी होगी, it is depending on omega into r, ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर, सो ये जहाँ जितना आर मेरा चेंज हो रहा है, माई स्पीड विल बी चेंजिंग जितना मेरा आर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मेरा आर कम है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे आर ज़्यादा है, यहाँ पे देखूँ आर ज़्यादा है, सो एट एवरी पॉइंट माई स्पीड वेरीज, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट मेरे से पूछ रहा है कि एट अ एल फ्रॉम द सेंटर व्हाट इज़ माई, एट सपोज दिस एल इज़ देयर, सो व्हाट इज़ माई स्पीड एल फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, एंड इट इज़ maintained to move into this groove only, it is maintained to move into this groove only, okay। and this motion will be in the constraint motion only in this groove only, and it is rotating with omega, so you just put a block here, and with the so once you put a block here, so it will be having the radial so we have to see it with the centrifugal force, so it is not having any radial push to provide it in this direction, so it will move in this direction, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई wall वगैरह होती then it will get a inward force from the wall, so जिसकी वजह से इसको एक inward push मिलता है, and we can say this particle will also do a circular motion, but यहाँ पे क्या होगा, इस पे कोई wall नहीं है, कोई push नहीं है, so it will normally move in this direction, ठीक है, it will normally move in this direction, so it is a, so we can say we have to find out its velocity when it's L from the center at this point, suppose it is at L, we have to find out its velocity, okay, ये निकालनी है हमने। so now we know कि we know the acceleration, so radial acceleration we know it is nothing but my radial acceleration is my omega square into r, at each and every point my radial acceleration changes with r, ठीक है। so with this acceleration I just change it to dv by dx, v dv by dx omega square at some distance x, मैंने we have seen at some distance x, what is my acceleration at some distance x, it is my omega square x, I just put the value of as v dv by dx and omega square x, r की जगह मैंने x, we just consider it at some distance x because we have to integrate it from this L initial जहाँ पे मैंने drop किया up to the final L, so now my initial velocity जब मैंने drop किया था तब इसकी velocity 0 थी, 0 to L I have integrated, and finally ये इसकी value कहाँ से, L से L तक, what will be its length, from this length L से L तक, what will be its velocity, 0 से v, that is what we have to find, we just integrate it and we have got the value of v as omega L square minus L square raised to power half, okay, right। so because it is constrained to move in this direction only, so
बेसिकली हमारा जो इसको अगर इसको सर्कल पे मूव कराना है, सो वी नीड there has to be a centripetal acceleration in this direction, so that can be provided if some either the wall is there or the friction is there which is going to provide. So यहाँ पे the friction has not been given, कोई friction नहीं है, so the block has a tendency to move outward. ठीक है, the block will move outward. It is because of inertia. That is we are going to study in centrifugal force. Okay, it is going to be outward only. So it is like a frictious force which is making it move outward because of inertia. ठीक है, ये बाहर move करेगा. that we have to find out कि इसकी when it is moving in this direction, so at a distance L, जब ये यहाँ से यहाँ तक L पे होगा, so what will be its velocity at this point. That is what we have to find out. Okay, that is what we have to find out. So we have to do it with constrained motion because at each and every point its acceleration changing. It depends on omega square r, so we have to do it with integration. Okay, we'll see the next question. So इस क्वेश्चन में दे रखे मेरे there are two blocks of masses m1 and m2, and m1 and m2 are placed, m1 is placed on m2 and m2 is placed on the table which is rotating. ठीक है, ये table it is rotating with omega, इसके ऊपर m2 रखा हुआ है, ये m2, there is a friction between them is mu2, and m1 इधर रखा हुआ है, there is a friction between them is mu1. ठीक है, and it's been given mu1 is greater than mu2, so ये वाली friction ज़्यादा है, ये वाली friction कम है. If the block are placed at a distance r from the relative sliding between them, we have to find out the frictional force at a contacting surface. We have to find out the frictional force, and we have to find out the maximum omega so that they will not slide. Okay, these two things we have to find out. There will not be any sliding, तो उस पर मेरे को maximum omega निकालना है. So first we'll find out, we'll do an FBD and we'll find out the frictional forces. Okay, so ऊपर वाले के ऊपर बनाते हैं FBD. So because of frictional forces only, it could able to move in uniform, it is moving a circular motion कर रहा है ना, so because of frictional forces only. So यहाँ पे it is having a friction force in this direction, it could able to make it जो दोनों block को it is making move in circular AC. ठीक है, in this radial direction. यहाँ पे centripetal acceleration इधर होगी. So we'll calculate, दोनों की centripetal acceleration will be same because omega is same. AC is equal to omega square r and both r is same, so दोनों की centripetal acceleration will be same. ठीक है, so now we'll do पहले this m1 block लेते हैं, m1 block. So because of m1 block इस पे friction इधर है, because of this friction only it is having a tendency to do a circular motion. ठीक है, because of this friction only, and this f1 will be there on f1 equal and opposite, और इस पे जो नीचे f2 लग रहा होगा, ठीक है, that f2 is making it both of them rotating. ठीक है, now we'll just make an FBD and we just calculate the value of f1 and f2. ठीक है, ये पहले ब्लॉक लिया मैंने, this m1 ब्लॉक, इस पे फ्रिक्शन इधर है रेडियल डायरेक्शन में, इट इज़ हैविंग डूइंग ए सर्कुलर मोशन, तो इस डायरेक्शन में इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन f1 इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू r. ठीक है, रेडियल डिस्टेंस r है. सेम वे ये जो नीचे वाला ब्लॉक है, इस पर एक f1 इधर है, f2 इधर है, नेट रिजल्टिंग फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी आ गई, f2 माइनस f1 इंटू m2 ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है, f1 को इधर ले गया, मेरी f2 की वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है, दैट इज़ माई फ्रिक्शन फोर्स एट अ कॉन्टैक्टिंग सर्फेस. दोनों सर्फेस पे मेरी फ्रिक्शन फोर्स आ गई, दैट इज़ f1 एंड f2. दैट इज़ व्हाट्स बीन आस्क्ड हियर. सेकंड क्वेश्चन में पूछा है मेरा मैक्सिमम ओमेगा कितना हो कि देयर इज़ नो स्लाइडिंग बिटवीन द m1 m2 एंड m2 एंड ग्राउंड. ठीक है, सो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन देखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन देखते हैं, एंड वी विल सी यहाँ पे जो मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू आई है, इट शुड बी लेसर देन माई लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन ओनली वी कैन से. सो यहाँ पे विल सी द लिमिटिंग फ्रिक्शन. हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है. ठीक है, तो विल सी के ये वाली वैल्यू वी जस्ट पुट इन इक्वलिटी, इट शुड बी लेसर देन इक्वल टू म्यू इंटू m1 n. ठीक है, सेम वे वी जस्ट पुट दिस इन इक्वलिटी लेसर देन इक्वल टू म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, और यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू जी. ठीक है, ये इनइक्वालिटी में डाल देंगे हम, एंड फ्रॉम देयर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू दोनों से निकालते हैं, एंड वंस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा वी हैव टू सी कि सबसे पहले स्लाइड जो करेगा μ1 वाला स्लाइड करेगा, जिसका μ1 कम है, तो विल सी द वैल्यू. पहले हम देखते हैं कि f1 कितना है. f1 जो मेरा ये आया है दैट शुड बी लेसर देन, यहाँ वाला के ऊपर जो मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन आई है दैट शुड बी लेसर देन माई लिमिटिंग फ्रिक्शन.
mu1 m1g. So I just put the value here m1 omega square और इधर mu1 omega g, m1 से m1 कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ गई ओमेगा 1, we say it is coming at mu1g by r. ठीक है, that is we can say it is coming as omega 1. we have to see कि जितना we have to find out the maximum omega. ठीक है, तो सबसे पहले जो स्लाइड करेगा ये जिसका अगर ओमेगा जिसका म्यू, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली विल सी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे को म्यू के साथ रिलेशनशिप दे रखा है. सो दैट मीन्स कि जिसका म्यू मेरा कम होगा तो वो सबसे पहले स्लाइड करेगा. ओमेगा 2 मेरा देखते हैं, यहाँ से मेरा फ्रिक्शन 2 आई है मेरी, ये वाली फ्रिक्शन 2, दिस वैल्यू शुड बी लेसर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी. यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने डाल दी एंड जस्ट कैंसिल दिस m1 m2. यहाँ से ओमेगा 2 आ गया मेरा √2 μ2 इंटू g2. और मेरा यहाँ पे अब दोनों कंडीशन देखिए मेरी यहाँ पे, बिकॉज माई μ2 इज ग्रेटर देन μ1, दैट मीन्स माई ओमेगा 2 इज़ ग्रेटर देन ओमेगा 1, दैट मीन्स के तो दिस शुड बी माई मैक्सिमम ओमेगा ऑन दिस, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव. अगर इस सपोज यहाँ से मेरी ओमेगा आ रही है मेरी 300 और यहाँ से आ रही है मेरी 700, सो मैक्सिमम ओमेगा शुड बी दिस वन, देन ओनली बोथ द ब्लॉक्स विल नॉट स्लाइड. अगर ये ओमेगा 300 से ज़्यादा हो गई देन ऑब्वियसली दिस अपर ब्लॉक विल गोइंग टू स्लाइड. ठीक है, सो यहाँ पे मेरा बिकॉज μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, सो ओमेगा 2 कम्स आउट टू बी, यहाँ पे हमने देखा ना μ2 इज़ ग्रेटर देन माई μ1, देयरफॉर ओमेगा 2 is greater than omega 1. omega 2 comes out to be greater than omega 1. So यहाँ पे मेरे को maximum omega चाहिए, that means omega 1 is my maximum omega when both the block will slide. Both the blocks, none of the sliding takes place in any of the surface. ठीक है, so this is my omega. So this is my value mu1g by r, that is the maximum value of omega at which there will not be any sliding, there will not be any relative sliding. Okay, so that is we are supposed to find out. Okay, next question देखते हैं. यस, सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ब्लॉक ऑफ मास m1, ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है. ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ मास m1 कनेक्टेड विद अनदर ब्लॉक, स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, इसकी नॉर्मल लेंथ उसकी L है, स्टिफनेस K है, दिस इज पुट ऑन अ रफ सरफेस. ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड द सरफेस इज म्यू, यहाँ पे जो मेरा है म्यू है, and the block m2 is moved with a certain speed so as to execute the uniform circular motion. That means it is moving here and it is doing a uniform circular motion. It is moving with same velocity around the block m1. ठीक है, around the block m1. So that means m1 is not moving, m1 is fixed. So m1 के ऊपर जो भी मेरी फ्रिक्शन है, that is friction and इसका because of क्या होगा ना, जब ये मूव कर रहा होगा तो एक एक्सटेंशन आ जाएगा इसमें, सो सम एक्सटेंशन विल बी देयर. सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन दिस m1 विल ट्राई टू स्लाइड इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स kx. सपोज इफ आई टेक kx स्प्रिंग फोर्स, सो इस डायरेक्शन में, सो फ्रिक्शन शुड बी मोर देन इनफ सो दैट दिस m1 शुड नॉट मूव. हमें देखा ना, इट शुड नॉट मूव, इट शुड एग्जीक्यूट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो हमारे को जो मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू है, जो दैट शुड बी ग्रेटर देन माई, जो यहाँ पे इसकी स्प्रिंग फोर्स, जो इसको स्प्रिंग फोर्स से पुश कर रहा होगा m1 को. द ब्लॉक m2 इज मूव विद अ सर्टेन स्पीड सो एज टू एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द ब्लॉक m1. ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ m2. m2 की मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालनी है. दैट मीन्स कि अगर m2 मेरा m2 इज़ व्हाट माई m2 की जो जितनी भी स्पीड आएगी, सपोज m2 की स्पीड v है, ठीक है, तो इट इज़ मूविंग अ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में क्या हो गया मेरा, इसका एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आ गया, इट इज़ mv²/r. और ये जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ प्रोवाइडेड बाय माई kx, जो भी मेरा इसका जो मेरा स्प्रिंग फोर्स होगा. अगर मेरा v की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्प्रिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, kx विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, kx विल इंक्रीज. सो एक ऐसा पॉइंट आएगा kx विल गेट ग्रेटर देन फ्रिक्शन, जो यहाँ पे जो मेरा फ्रिक्शन होगा kx विल ग्रेटर देन दिस फ्रिक्शन एंड दिस ब्लॉक m1 विल स्लाइड. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ ब्लॉक m2 रिलेटिव टू m1 सो दैट m1 विल नॉट स्लाइड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ m2. ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी है m2 की. एक्सेलरेशन इज नथिंग बट यू कैन टेक इट आउट विद kx by m2, that we'll see. So first we'll draw the
फ्री बॉडी, वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन ना कि इसको ये नहीं मूव कर रहा बिकॉज द फ्रिक्शन इज देयर विच इज़ मोर देन द स्प्रिंग फोर्स विच इज़ बिन प्रोवाइडेड है. और स्प्रिंग फोर्स क्यों आ रही है? स्प्रिंग फोर्स इज गिविंग इट द सर्कुलर मोशन. M2 का सर्कुलर मोशन इज गेटिंग डूइंग अ सर्कुलर मोशन बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स ओनली. सो लेट अस नाउ प्रोसीड इन द क्वेश्चन. पहले इसके ऊपर बनाते हैं हम. विल ड्रॉ एन FVD. सो इसके ऊपर नॉर्मल आ गया, ऊपर नीचे mg आ गया. इधर इस पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है बिकॉज इट इज़ एक्सटेंडेड टू kx. अगर x इसका एक्सटेंशन है तो इस पर स्प्रिंग फोर्स एक kx लग रहा है और इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है मेरा इस डायरेक्शन में f. ठीक है. सो ये kx अगर f से बड़ा हो जाएगा देन द ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल नॉट बी with respect to m1 will start moving also. So हमारे को we have to make this rest. m1 को रेस्ट पे रख के we have to do the circular motion. और यहाँ पे जो m2 सर्कुलर मोशन कर रहा है सो इसके ऊपर रेडियल एक्सीलेशन इस डायरेक्शन में है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स की वजह से. सो kx इज इक्वल टू वी कैन से m ओमेगा स्क्वायर. वी हैव सीन अर्लियर कि L0 इसकी ओरिजिनल लेंथ है, x इसकी एक्सटेंशन हो गई, सो L0 प्लस x. ठीक है. दैट इज़ माई वैल्यू ऑफ that is my this is what kx is providing m2 centripetal acceleration. ठीक है. अब यहाँ पे मैं kx की वैल्यू बिकॉज आई नीड अ मैक्सिमम एंगुलर स्पीड. मैक्सिमम एंगुलर स्पीड का मतलब है कि मैं मैक्सिमम kx हो जाए मेरा. ठीक है. मैक्सिमम kx हो जाए एंड मैक्सिमम kx कब तक होगा? जब तक मेरा उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं पहुँच जाता. ठीक है. सो आई पुट kx इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन. यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई म्यू m1g बाई k एंड आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर जिससे मेरा ओमेगा आ जाएगा. दिस इज माई मैक्सिमम ओमेगा एट विच the maximum angular speed at which the block m2 will move related to m1. So m1 will not move. Okay, this is my maximum omega will come from here, right? Next देखते हैं. next में हमसे पूछा है so it is the same we have discussed. maximum omega तब होगा जब m1 will not slide and that it will reach up to the limiting value. So at that we have to find out because will omega increase होगा तो kx is keep on increasing, kx will keep on increasing, it will reach up to a value when it's become equal to the limiting friction. Now acceleration निकालनी है मेरे को. acceleration of block m2. acceleration is what? acceleration is nothing but my AC only, centripetal acceleration, because it is doing a uniform circular motion. at is 0 in uniform circular motion. Tangential acceleration is 0, so only my acceleration will be my an. ठीक है. acceleration will be equal to my an. so now an क्या है मेरी? an is nothing but my, I can write it down m into an is equal to, or m into a I can write down kx. ठीक है. it is because of the kx only it is moving, so kx is equal to m into an. यहाँ से an की वैल्यू मेरी आ गई. I just divide kx divided by m2. यहाँ पे k into x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली थी. This one I just put the value here and m2 here. With this I've got the value of acceleration. Okay, right? So we'll wrap it up today. We will wrap it up. We were having कुछ एक प्लान थे, कुछ एक questions we have taken it from Irodo. So मेरा प्लान था कि ये वाले question भी cover up करने का, but I don't think so we have a time. There is like 5-6 questions that we have to cover up, but that will take another 40-45 minutes. I don't think we have a time, so no problem, we'll cover up in next lecture. So we'll take a quick review. हमने क्या क्या देख लिया. हमने इस लेक्चर में we have seen the dynamics in circular motion. So circular motion में हमने देखा to move any body into the circular motion is always an accelerated motion. So that is accelerated towards the radial side, और अगर उसकी velocity change कर रही है so that is also accelerated towards the tangential side. ठीक है. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है so that motion is always accelerated towards the center, that is a radial side, or the we call the acceleration as a centripetal acceleration or the radial acceleration or the normal acceleration. और वो acceleration किसकी वजह से आती है? It is because of the centripetal force. और वो centripetal force क्या होती है? That is all the contact forces or the non contact forces हमारी जितनी भी उस बॉडी पे लग रही है उसका कंपोनेंट along the direction of radial, उन सारी बॉडीज़ का रिजल्टेंट along the direction of radial is going to give me the centripetal acceleration. So centripetal force जो होती है मेरी कोई सेपरेट फोर्स नहीं होती. इट इज़ जस्ट द फोर्सेस दैट वी आर हैविंग, उन सब का कंपोनेंट along the direction of radial जो भी आएगा दैट इज़ व्हाट माय centripetal force. ठीक है. सो उससे हमारा सो हम विल अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ इन दैट along the direction of radial direction. We'll apply the Newton second law. Okay, resultant of all the forces along the direction of radial is equal to m into my a into centripetal. ठीक है. That is what we do it in our Newton second law when we apply along the radial direction.
तो यहाँ पे ए सी वी पुट इट एम वी स्क्वायर बाई आर, वी हैव सीन इट. सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन हमने देखा था डेरिवेशन इन द काइनेमेटिक्स चैप्टर, इट इज़ नथिंग बट वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, फिर हमने एप्लीकेशन देखी थी कुछ एक सर्कुलर मोशन की कि हमारी जो सेंट्रिपेटल फोर्सेस हैं, व्हाट कुड बी आर सेंट्रिपेटल फोर्सेस. हेयर हमने देखा था इट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ एम जी एन एन. फिर हमने यहाँ पे देखा था इट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ आवर टेंशन. हेयर हमने देखा था रिजल्टेंट ऑफ आवर वॉल, नॉर्मल फ्रॉम द वॉल. हेयर हमने देखा था इट इज़ रिजल्टेंट फ्रॉम द फ्रिक्शन. द सेंट्रिपेटल फोर्स इज सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पे हमने देखा था इफ बॉडी इज मूविंग इन अ कर्व पाथ, तो हमारा नॉर्मल हाउ इट इज़ वेरिंग एट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. इस क्वेश्चन में हमने देखा था माई एंड सेंट्रिपेटल फोर्स इज बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन elongation in the spring, so spring force. Then we have done some questions on that. We have seen the non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion में क्या होता है, हमारी स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग. सो अगर स्पीड चेंज हो रही है दैट मीन्स इट इज़ हैविंग अ two set of acceleration will be there. One is towards the radial side, one is towards the tangential side. जो tangential side वाली acceleration है that is going to change the speed, ठीक है. और जो radial वाली side है that is going to change the direction. The radial वाली side that is going to change the direction, ठीक है. और tangential वाली it is going to change the speed. और इन दोनों का net आता है मेरा, that is going to give you the net acceleration on the particle. तो ये वाला जो मेरा रेडियल वाला कंपोनेंट है, सेम वे अगर ब्लॉक पे मेरी मल्टीपल फोर्सेस लग रही है, सो आई जस्ट हैव टू इक्वेट ऑल द फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस उसको इक्वेट करना होता है टुवर्ड्स द रेडियल साइड एम वी स्क्वायर बाई आर से, और टुवर्ड्स द टेंजेंशियल साइड वी हैव टू इक्वेट इट बाई एम ए टी टेंजेंशियल, एंड माई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी वी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बाई विद टाइम. You have seen it in this question. The pendulum, if it's we just push the pendulum from this position to this here. So यहाँ पे अगर हम इस पोजीशन पे देखें, so रेडियल डायरेक्शन ये हो गई, टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है. तो रेडियल डायरेक्शन में विल सी व्हाट आर द फोर्सेस, विल इक्वेट इट, दी वाला फोर्सेस को विल इक्वेट इट विद इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है. विल इक्वेट इट विद एम वी स्क्वायर बाय आर और एम इंटू ए इंटू एन. और ये वाली इस डायरेक्शन में जो मेरी नेट रिजल्टेंट फोर्सेस हो गई विल इक्वेटेड टू एम इंटू ए टी, ठीक है. यहाँ से ए टी और ए एन निकाल के वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑन दिस पार्टिकल. देन वी हैव सीन सम क्वेश्चन. हमने एक क्वेश्चन देखा था यहाँ पे, if this block is moving on a disk, so with some uniform acceleration alpha, and we are supposed to find out the value of my time when this block started sliding, ठीक है. तो वो स्लाइड कब करेगा, when it reaches धीरे धीरे जैसे अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वजह से ओमेगा बढ़ता रहेगा, वी विल फाइंड आउट कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी. एट दिस पॉइंट इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी बिकॉज वेलोसिटी इज़ माई ओमेगा इंटू आर. ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा की वजह से मेरा वी बढ़ेगा, दैट मीन्स कि जो इसकी रेडियल एक्सेलरेशन है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, दैट विल कीप ऑन वी स्क्वायर बाय आर. तो एक पॉइंट आएगा कि मेरा जो फ्रिक्शन है, जो मेरा फ्रिक्शन है दैट कुड नॉट एबल टू होल्ड दिस वैल्यू, ठीक है. दैट कुड नॉट एबल टू होल्ड दिस वैल्यू, उसके बाद वो जाके स्लिप हो जाएगा. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा मेरा ए टी और एन का, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर जब होगा, दैट इज़ द टाइम व्हेन द ब्लॉक स्टार्टेड स्लिपिंग. So here also we have seen some questions. This is an interesting question कि M1 block है, M1 को we have connected with M2. So we are holding this M2 block by rotating this M1 block, ठीक है. M1 को rotate कर रहे हैं, because of that this rotation the tension will be there, and this tension is holding this M2G because of this uniform circular motion. This tension is going to there, and this tension is nothing but it's going to hold this M2. फिर हमने देखा अगर M2 का हम थोड़ा सा वेट बढ़ा दें तो what will happen to this motion, और M2 का वेट कम कर दें so what will happen to this motion. We have seen it will spiral inward until the balance is restored, and अगर इसका मास कम कर दें it will spiral outward until the balance is restored. Okay. हमने यहाँ पे देखा था, वी हैव सीन के इफ़ पार्टिकल इज़ सपोज टू बी कंस्ट्रेन टू बी मूव्ड इन ग्रूव, तो वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर मैंने ग्रूव पे यहाँ पे एट ए डिस्टेंस एल रख दिया, वी हैव टू फाइंड आउट कि इसकी वेलोसिटी आफ्टर, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट विद रिस्पेक्ट टू टेबल एट ओमेगा एल at a L from the center. That is what we have to find it out. So we have applied it A is equal to omega r, and we have done A is equal to dv by dx, and A is equal to dv by, because with the distance how my acceleration is changing, with this A is v into dv by dx we have seen kinematic equation. यहाँ से omega square x पे, and we just integrated both the side. X की वैल्यू मैंने L to L डाल दी,
and velocity at L is my 0 and final velocity is my L. So that is what we have put. Okay, so why we have to put it like this? Because my acceleration is varying with r. Okay, at each and every point my acceleration is varying, so because my acceleration is varying, so my velocity, my speed will be changing at each and every distance. So यहाँ पे speed कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी. So at each and every point speed will be changing. So मैंने एक distance x consider किया और उस x पे I just take the value of acceleration और उसके बाद I just change the value of acceleration into its differential form and then integrate it. ये भी हमने क्वेश्चन देखा था. वी हैव सीन टू ब्लॉक्स आर देयर, इट इज़ रोटेटिंग, वी हैव टू फाइंड आउट के मैक्सिमम ओमेगा के ये स्लिप ना करें. वी हैव सीन दिस क्वेश्चन. एंड द लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था इन द स्प्रिंग फोर्स के ये अगर रफ सरफेस है एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग, सो बिकॉज ऑफ द के एक्स इट इज़ मूविंग इन सर्कुलर मोशन एंड दिस के एक्स इज इंक्रीजिंग, इट इज़ गोइंग टू bring the limiting value of friction and it will start sliding after that. So that was the concept we have started here. So that's all for today. Next lecture में हम लोग देखेंगे, we'll see some questions on dynamics of circular motion and then we will start our lecture and we'll do the concepts of centrifugal force. We'll do the concepts of our banking of roads. All those things we are going to see in the next lecture. Okay, so that's all for today. All right, thank you.